मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू you all in our next class. Today, as we know that in previous videos we discussed about the present perfect continuous tense. So till yesterday or previous videos we completed our present tense. Now we will start our next point, that is past tense. Okay. So today we will discuss about the past tense. Now simple past tense. So how will you make a simple past tense sentences, and what are the structure of the simple past tense, and how will you change the affirmative sentences into negative or interrogative sentences in past tense. And after that we will discuss some points to edit error. How will you edit error regarding the past tense questions. Okay. So let's start with a structure of simple past tense. As we know that the structure of simple past tense is S plus V2 plus O. So here S means subject as usual, isn't it? V2 means second form of verb, and O for object. So this is the structure of simple past tense, or we can say that past indefinite. Okay. Now if you want to make any past tense sentences, then you must follow this structure. If you follow this structure, then you will make a simple past tense sentences. So now how will you form the simple past tense sentences? Let's take an example and try to know it. Okay, suppose here if I will write here subject should be he. Okay, and suppose V2 form of verb. Okay, suppose when. Okay, and object should be school. Now look here, if you go through the verb, okay, if you go through the forms of verb, then you will see there is 3 or 5 different forms of verb, isn't it? In that form of verb, the first form of verb you will get what? Go. In second form of verb you will get went, and in third form of verb you will get what? Gone. Okay, so these are the forms. So you must know about the different forms of verb, so that it will be very easy to know the structure or know the past tense of the sentences of a past tense. Is it clear? So as per the structure V2, we took this word, that is when. Okay, so when is the second form of verb, and first form of verb of when is go, and third form of verb is gone. Is it clear? So keep it in mind. Now with the help of these 3 words, okay, we will make a simple past tense sentence. Suppose सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है? ये 3 वर्ड जो है, इस 3 वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है. तो लेट्स फर्स्ट वर्क स्ट्रक्चर. लुक एट स्ट्रक्चर. फर्स्ट राइट सब्जेक्ट. तो यहाँ सब्जेक्ट हमने क्या लिया? ही. तो राइट ही. उसके बाद में प्लस V2 यानी हम वर्ड लिए थे वेंट. ओके, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, टू
ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। इज इट क्लियर? तो अब ये सेंटेंस बन जाता है ही वेंट टू स्कूल। अब ये सेंटेंस जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है। ही वेंट टू स्कूल, यानी वह स्कूल गया। ओके, वह स्कूल गया। तो ये देखिए, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जब आप ये समझ गए कि सिंपल पास्ट टेंस किस तरह से बनाना है, उसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर काम जो है क्या करना है? फॉलो करना है, समझना है। इसी स्ट्रक्चर पे किसी भी सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस में बन जाता है। तो यहाँ देखिए, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, ये सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सेंटेंस है। अब इस सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस जो है बन गया है, तो ये सेंटेंस जो है ही वेंट टू स्कूल जो है, इसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, यानी कि ये जो है, ये स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब ये समझ गए कि सिंपल पास्ट टेंस हम किस तरह से बना सकते हैं, कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे। लेकिन ध्यान में रहे, एक कंफ्यूजन कितने बच्चों को ये भी रहता है कि यहाँ पे ही जो है आप प्रयोग किए हैं वो तो थर्ड पर्सन है, तो क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ या तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वेंट जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या वो प्रयोग कर सकते हैं? यस, यू कैन। पास्ट टेंस में ये नहीं देखा जाता है कि अगर थर्ड पर्सन है तो आपको कुछ दूसरा यूज करना है या तीसरा यूज करना है। पास्ट टेंस में हमेशा आपका एक ही वर्ड इस्तेमाल करना होता है, वो बी टू फॉर्म, चाहे उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। इज इट क्लियर? नाउ ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर हम चेंज कर देख लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए इसको नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है, यानी ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है वो देखते हैं। उसके लिए भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है, जो स्ट्रक्चर हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट टेंस का, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो है आपका क्या है? सी डिड नॉट, सॉरी यहाँ पे वर्ड जो है आपका मिसिंग है, सो वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपका क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो हम ये इससे हम क्या बना सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं कैसे? देखिए, इसी ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको आप नेगेटिव में बनाते हैं। ही वेंट टू स्कूल कहा गया है, तो अब इसका क्या होगा? सब्जेक्ट पहले दे दीजिए। सब्जेक्ट यहाँ क्या आता है? ही, उसके बाद में प्लस डिड नॉट। ओके, अब यहाँ डिड नॉट होगा तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आप नेगेटिव बनाते हैं पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो डिड नॉट लगने के बाद जो है वर्ब का फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही डिड नॉट go to school. Okay, he did not go to school. तो ये हो जाएगा क्या आपका? नेगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? तो यहां पे होगा he did not go to school। तो ये did का इस्तेमाल किए, इसलिए ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया did not का इस्तेमाल करने के बाद। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है? हम
इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फॉर्म, जैसे कि यहाँ डिड का इस्तेमाल किए हैं तो इसका भी क्या है, पहले होता है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म डू होता है, सेकंड डिड और थर्ड फॉर्म डन होता है कि नहीं, होता है। तो यहाँ पे देखिए हम डिड का प्रयोग किए हैं, ये क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, समझ गए। तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लेंगे। ओके, अब दूसरी बात समझने की बात यह है कि हम अगर प्रेजेंट टेंस में आप लोग देखे हैं कि हम लोगों ने डिड का प्रयोग नहीं किया, डज का प्रयोग किया है, जो V5 फॉर्म है, डज है कि नहीं। तो डज अगर होता है तो वो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में जो यूज करते हैं, किसमें, जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर और थर्ड पर्सन, उसमें हम डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में हमेशा हम डिड का प्रयोग करते हैं, डज के प्लेस में हम डिड का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे करेंगे। जिस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे, है कि नहीं, स्ट्रक्चर था क्या, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, पहले डिड को करेंगे, ओके, डिड ही, अब यहां V1 नहीं होगा, बल्कि यहां क्या होगा, डिड ही वेंट टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहां ये जो है हम क्या बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, डिड ही वेंट टू स्कूल, ओके। तो ये जो है आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से एफर्मेटिव से आप इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। जैसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या था स्ट्रक्चर, S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो है क्या चीज का प्रयोग नहीं किया गया था, डिड का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, ओके। नाउ अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड पहले इस्तेमाल करने के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, और सब वही सेम रहेगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से चेंज करते हैं उसके विषय में यहाँ पे जाने हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एडिट, यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको क्या करना होता है, एडिट करना होता है, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अगर पास्ट टेंस से क्वेश्चन किस तरह से आए, जो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्न जो है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, जैसे रोमा hides her face in shame। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ओके, रोमा हाइड्स हर फेस इन शेम, लेकिन इसको हम अगर चेंज करना है पास्ट टेंस में तो किस तरह से करेंगे। अब पहले देखिए कि ये कौन सा टेंस है। अब ये कौन सा टेंस है समझने के लिए आपको क्या करना है,
पहले स्ट्रक्चर आपको याद करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ध्यान में रखिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखिए हम बताते हैं आपको। यहां देखिए सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है रोमा, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर भी है कि नहीं है? तो चलिए उसके बाद में यहां देखिए वर्ब, वर्ब जो है यहां क्या है? हाइट, हाइट दैट मींस वर्ब जो है कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? V5, V5 फॉर्म है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब V5 है और इसमें और कुछ देखना नहीं है, तो पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखे थे जो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो V5 का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? मेन वर्ब जो है क्या? V5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रोमा सिंगुलर थर्ड पर्सन है और हाइट जो है वो V5 है। दैट मींस इससे हमको ये पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ गए? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसको जो है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? सिर्फ इसको क्या करना है? कुछ करना नहीं है, सिर्फ वर्ब को जो है क्या कर देना है? चेंज कर देना है। वर्ब को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। बस ये सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए रोमा हिट हर फेस इन सेल। अब ये हो गया आपका पास्ट टेंस। तो देखिए यहाँ हाइट्स के जगह पे सिर्फ हिट लगा दिया गया। ये V2 फॉर्म ऑफ वर्ब, ये V5 फॉर्म ऑफ वर्ब को हम चेंज करके V2 में बदल दिए। बस ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो गया। समझ गए? उसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जॉनी वेयर्स ए डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। अब यहां भी देखिए वेयर्स है और जॉनी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वेयर्स V5 है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये V5 है। तो हम ये कह सकते हैं ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमको भी यहाँ क्या करना है? वेयर्स को सिर्फ चेंज कर देना, वर्ब का फॉर्म को चेंज कर देना, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसको क्या करना है? जॉनी वॉर कर देना, WORE, वॉर अ डायमंड रिंग। तो इस तरह से हम वेयर्स के जगह पे वॉर कर दिए, ये चेंज हो गया। तो ये सब देखिए कि यहाँ पे हम जितने भी किए हैं सिर्फ वर्ब चेंज कर रहे हैं। तो टेंस में सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब पे ही मेन क्या करना है? कंसंट्रेट करना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म किस टेंस में आता है उस पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, खुद ब खुद टेंस जो है बन जाएंगे। समझ गए? उसके बाद में नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है? द सन शाइन्स, शाइन्स ब्राइटली, brightly in the sky. Okay, the sun shines brightly in the sky. ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? the sun जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और शाइन्स जो है ये V5 फॉर्म है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस sentence. So now we change it into a simple past tense. Then how we will change it? We have to change the forms of verb into V5 into V2. तो साइंस का क्या होगा? shone, SHONE. The sun shone brightly, brightly in the sky. ओके, ये इस तरह से देखिए यहाँ साइंस का शोन बना दिए हैं। ये V5 है, ये V2 हो गया। तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है नंबर 4, our soldiers fight and win, fight and win, है कि नहीं?
ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को क्या करना है हमको, चेंज करना है किसमें, पास्ट टेंस में। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, पहले देखना है इसमें वर्ब। तो वर्ब देखिए, एक फाइट है और एक विन है। ओके, तो ये फाइट को है, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये सोल्जर्स है, सोल्जर जो है प्लूरल है। तो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए सोल्जर जो है प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल है। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो है फाइट, फाइट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पास्ट टेंस बना देंगे, फाउट कर देंगे। आवर सोल्जर फाउट एंड वन। और सब जो है वही रहेगा, सिर्फ इसको चेंज कर देना है और इसको चेंज कर देना है, ये बन जाएगा आपका क्या, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड में, इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है, उस पे आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ब पे ज्यादा ध्यान रखना है और वर्ब को देखना है कि कौन सा फॉर्म में है और किस फॉर्म में आपको चेंज करना है। एक बात और कि आप लोगों को ये नहीं कहा जाता है, बोर्ड के परीक्षा में जो प्रश्न दिए जाते हैं, ये नहीं कहा जाता है कि इसको जो है इसमें चेंज कीजिए, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है, इसको पास्ट टेंस में कीजिए, ये नहीं कहा जाता है। आप लोगों को खुद एक बात का ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस को आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है और यहाँ कौन सा टेंस होना चाहिए। और इसको पहचानने के लिए सबसे मेन और जरूरी बातें हैं वो है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से याद है तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। तो होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल डिस्कस लेटर पास्ट सिंपल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। कितना मिनट होगा ना?